all the time. Even about the smallest, minutest of the detail about the expression or how I was going to look at my co-actor, everything he is planned. He's so methodical about it. So everything was thought about, and everything which you see on the screen was directed. The only thing that I kind of improvised or I've done my own thing was dancing. So, so that is it. But yes, I always wanted to work with this guy, and we have a script ready. We've been looking for a producer since a long time. It's a very brave film, and it needs lots of guts from the producer side to produce it. So only for that reason, the film was taking quite a lot of time. And meanwhile, we thought of this script, and I jumped over it. I said, let's go ahead and shoot it. So we took around 2 to 3 days to shoot the film properly, but he was very demanding. He was not letting me go anytime. मनोज सर, जिस तरह का फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया कैरेक्टर में, वो वाकई में क्या रिलेवेंट है आजकल की सोसाइटी से? हम सब के अंदर है, अनुराग said it rightly. And क्या है कि हम लोग जब गुजरते हैं, पुलिस वालों की गाड़ी देखते हैं, पुलिस वालों को देखते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जैसी है वो हम सबकी ओपिनियन उसके बारे में होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. लेकिन एक बात तो सच है कि जो पुलिस वाला है वो भी हम जैसे या आम आदमी की तरह से, उसकी भी बड़ी इच्छा है अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देने की. लेकिन यहाँ पर एक ऐसा आदमी है कि वो अपने इंटेग्रिटी से, अपने प्रिंसिपल से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है. सो हाउ ही इज गोइंग टू डील विद हिज स्ट्रेस, हाउ इज गोइंग टू डील विद द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द फैमिली. तो उसने ये रास्ता चुना कि अब सारे स्ट्रेस को, सारे टेंशन को निकालने का. तो एक छोटी सी एक झलक है, एक आपको उसके जिंदगी में झांकने की, 10 मिनट की. 10 मिनट में आप ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन एक चुनौती होती है कि बहुत सारी चीज़ें हम बता पाएँ, उस आदमी की ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें दिखा पाएँ, और कुछ आपके ऊपर भी छोड़ें कि आप उसको इमेजिन कर पाएँ, उसके बारे में कल्पना कर पाएँ. Yes. Hi, my question is to Devashish. I want to know, you have used, like you have given a lot of people those fancy ideas. So was it symbolic? So what did it symbolize to? You know, I was asked this question about the masks also, because a lot of people are in masks, and generally when you see masks on screen or used in a visual medium, they connote things like, you know, an identity, you know, a comment on identity. It was nothing of that sort. My brief to the entire crew was that Taandav is being subject to violence. You know, the violence that we are subject to every day when you're in traffic, the sound, the smoke, the angry people, the people abusing each other. You're at home, someone's playing music really loudly in the flat next door. It's violence. So this man, with his wife staring at him, with someone slamming a ledger shut, is being subject to violence. So when we went to shoot Ganpati Visarjan the last day, I just told Swapnil, my DOP, and my sound designer Kamod, that we need to catch violence. Now when we went into the crowds, there's something strange that's been happening in the last 2-3 years. People are wearing these masks, Spider-Man masks, Batman masks, Green masks, V for Vendetta masks, and those masks to me connoted violence, because, you know, there's a sense of anger, there's a sense of, you know, threat in those expressions. So we just caught it because it looks like violence, and Taandav standing there is being subject to violence that he has nothing to do with, and it's just, you know, making him restless, and some bile is rising inside. So all those specks with those lights dancing, it's visual violence. So it connoted just violence, all of it. The question is, is he a head constable or a... He is a head constable. But then normally constables are not allowed. During bandobast duty, the head constable gets a gun. So we found out, yeah. You can't catch him on detail. Believe me, he's a wrong guy. हेलो, मेरा क्वेश्चन देवाशीष से, क्या सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आइडिया, या कोई किसी रियल इंसिडेंट से, या फिर
रियल इंसिडेंट से ज़्यादा ना ये रियल इमोशंस और रियल रिस्पॉन्सेज हैं टू द वर्ल्ड दैट वी लिव इन। बॉम्बे में, मैं जब बॉम्बे में आया था 12 साल पहले, तो एक चीज़ है बॉम्बे के बारे में जो मैं देखकर और एक्सपीरियंस करके मैं हिल गया था, क्योंकि लोकल ट्रेन में हो या आप बीच पे एकदम सन्नाटे में बैठे हो, 1 मिनट का सन्नाटा रहता है, उसके बाद कोई चिल्लाता है, कोई कुछ फेंकता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, एंड यू आर लाइक मैं कहाँ आ गया, मैं किसी की स्पेस तो वायलेट नहीं कर रहा। तो वो दैट सेंस ऑफ वायलेंस वो मेरे अंदर धीरे धीरे वो पनपता जा रहा था इतने सालों से। एंड दिस कैरेक्टर्स एक्चुअली, लाइक मनोज जी सेड, इट्स अ फीचर फिल्म दैट वी आर ट्राइंग टू मेक टुगेदर, जिसमें भी वो कैरेक्टर एक लोअर लेवल पुलिस वाला है और उसकी एक्सपीरियंस भी यही है दुनिया के साथ। वो कहीं ना कहीं एक अपने अंदर की शांति ढूंढ रहा है, पर वो अंदर की शांति और बाहर की बेचैनी के बीच की कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, वो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये आइडिया वहीं से आया। तो अब आप पूछोगे कि इसको पुलिस वाला क्यों बनाया हमने, क्योंकि एक यहाँ पे यू नो द स्टोरी इज रियली अबाउट अ फादर एंड अ डॉटर, और एक वर्दी वाले पर ना वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम एक एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि ये अगर घूस ले तो गलत है, पर हमने ले लिया तो हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। अभी जो है मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि सुधीर, त्रिशु और अनुराग कश्यप 3 बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स हमारे बीच में हैं। अच्छा बुरा जो भी है वो आपके सामने कुछ इस फिल्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं। सुधीर, सबसे पहले आप। उम्र का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। नहीं मतलब फॉर मी आई डोंट नो, मैंने तो वो फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी है काफी समय पहले। मेरे को तो तांडव जो है उस फिल्म का ट्रेलर था लगा, और देख के लगा कि वो फिल्म का जो पावर है, जो स्क्रिप्ट में 10 गुना ज्यादा विजुअली और निकल के आता है। तो वो मतलब 5 साल पहले पढ़ी थी फर्स्ट ड्राफ्ट। और अगर ये है फीचर फिल्म जो तुम बनाने जा रहे हो तो यार अच्छी बात है, प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे, बात करते हैं। No, I think and I'm very proud of देवशीष because उसकी सारी शॉर्ट फिल्म्स मैंने देखी हैं, पहली से लेकर आज तक। और पहली शॉर्ट फिल्म तो एकदम पता नहीं कहाँ से आई थी, जब कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, बिना बताए चला गया था ये और इसका दोस्त रजत, और पीयूष भाई को लेके चले गए थे। पीयूष भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा मैं यार कुछ डबिंग करके आ रहा हूँ देवशीष मकीजा के लिए। वो थी रही मुर्गे पे मत रो, वो कमाल की शॉर्ट फिल्म थी, 1 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी, और 1 मिनट में उसने बहुत कुछ कह डाला। उसके बाद से लगातार आई बीन वॉचिंग हिज जर्नी। इसने किताबें लिखी हैं, इसने एग्जीबिशंस किए हैं, एक होता है ना कंप्लीट आर्टिस्ट, वैसे किसी भी बात पे आप बहस नहीं कर सकते। एक ही चीज़ में हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा था कि बुरे जोक्स कौन ज़्यादा बुरा सुना सकता है, वो मैं हमेशा जीतता था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिज जर्नी एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स रियली अ ग्रेट फिल्म। इफ इट्स द फर्स्ट प्रोडक्शन देन इट सेट्स अ वेरी हाई स्टैंडर्ड and congratulations. Thank you, Anurag. Now, Tigmanshu Dhulia. जिम्मेदारी है ये, क्योंकि ये जो डायरेक्टर हमारे बगल में बैठा है, अब क्या है कि थोड़ी माननी पड़ती है कि अब तुम सीनियर हो गए हो, थोड़ा आशीर्वाद देना पड़ता है। एक काबिल डायरेक्टर का काबिल असिस्टेंट और बहुत ही बेहतरीन फिल्म। मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स की दुनिया से मेरा ताल्लुक रहा नहीं है, लेकिन देखता हूँ, और इसमें जो उस फिल्म में मुझे अच्छा लगा उसका एंड बहुत बढ़िया, टेक्निकली बहुत अच्छी है, आपने साउंड डिज़ाइन ब्रिलियंट काम किया है। लेकिन जिस तरह फिल्म एंड होती है, शॉर्ट फिल्म हमेशा होता है कि आप एक छोटी सी चीज़ को उठाते हैं और अंत में कुछ हल्का सा एक घुमाव दे देते हैं, वो इतनी बड़ी बात कहा जाता है। और उसमें जो बड़ी बात थी कि ज़िंदगी जी लो यार, तो वो बहुत अच्छा था। तो इतने कम समय में इतनी अच्छी बात कह जाना एक अपने आप में बहुत बड़ा टैलेंट है। और ऑल द बेस्ट टू movies.com, ऑल द बेस्ट टू यू लाइफ हियर सुधीर भाई। हर बार जब मैं किसी जूरी में होता हूँ शॉर्ट फिल्म की, तो फर्स्ट प्राइज इसी को मिलता है। तो ये मतलब मैं तो आई हैव सीन लॉट इज वेल ब्रिलियंट। बहुत मुश्किल है शॉर्ट फिल्म बनाना, मुझे तो फीचर से ज़्यादा मुश्किल लगता है, बिकॉज वो एंटी डायलॉग होती है थोड़ा सा, उसमें विजुअल जो और सिनेमैटिक कंट्रोल डायरेक्टर का ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि लॉन्ग फिल्म में तो एक सवाल होता है, उस सवाल का जवाब होता है, फिर एक सवाल होता है, फिर जवाब होता है, तो थोड़ा बट एक इम्प्रेशन टू सजेस्ट एंड लीव यू विद अ फीलिंग, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम है और बहुत अच्छा काम किया है। साउंड डिज़ाइन बहुत ही अच्छी है, विजुअली बहुत अच्छी है, कटिंग बहुत अच्छी है,
और जिस पॉइंट पे अनएक्सपेक्टेडली छोड़ती है वो बहुत ही कमाल है। ऑल द बेस्ट, ब्रिलियंट, वेरी गुड। Okay, so now next round of question. Whoever. Okay, hi. I want to ask a question. But like he said that sinister आप एक मूवी को उस पे ले जाते हो, sinister जैसे दिखाने की कोशिश करते हैं, at the end में you turn it the face and you make it light and nice. So I must also applaud. That is very nice part of it. I have a question that in the beginning of the movie, the first few scenes of the movie, the entire focus was on the actor's face, Manoj ji's face. And then the scenes where the story was being told via his facial expression, and the next line of story moved into the screenplay with props, backgrounds, and everything. Was that planned or is like how was it? Yeah, it was designed that way because you don't know who this person is, so you're slowly coming into his situation, his state of mind, and then going into why he is that way. And the thing with short films is that we have the liberty to experiment with narrative structure. I may not be able to pull off this kind of a narrative structure in a feature, so we just had a lot of fun. Yeah. If I may ask, how much, what was the duration, duration that took you to film this entire short story in the movie? It's very hard to answer a question like that because the pre-production somewhere is also you're filming it in your head, you're allowing your DOP to tell you how, visually you can interpret certain things, your sound designer, your editor. So about 2 months of that, and then we had to shoot it in 3 days because of budget. You have to keep your budget as tight as possible. Anurag will not agree. He thinks it can be even tighter, and I promise I'm going to try. So yeah, I'd say 3 months, the entire life of such a project. मनोज जी आपसे सवाल है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं फुल फीचर फिल्म बनेगी और अनुराग कश्यप, टिग्मांशु धुलिया सर और आप तीनों साथ एक बार? नहीं, मैंने सबके सामने ये बात जानबूझ के बोली है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि तो अब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये तीनों जो? अरे तीनों ना प्रोड्यूस करें, कोई बाहर से ही दिलवा दे, हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम कल शूटिंग करने को तैयार है, सारा कुछ रेडी है, कैरेक्टर भी रेडी है, सब कुछ एकदम तैयार है, बस आप शूटिंग के लिए मौका दीजिए, हम 4 दिन में ये रेडी करके आ जाएगा। सर हम इसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस माने उस पिक्चर में? ये पहली झलक है उस पिक्चर की। अनुराग सर, मेरा सवाल आपसे है कि मैं भाग रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। इन लोगों का एक दोस्त है सौरभ शुक्ला, वो इंतजार कर रहे हैं, नाराज होगा। हेलो बैकअप, ये फोटो बढ़िया। अनुराग सर, आपसे सवाल है, क्रिएटिव एंगल से इसको कैसे देखते हैं और एडिटिंग जिस तरह से हुई है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं अगर कुछ भी बोलूँगा आपको समझ में आएगा एडिटिंग के बारे में, आप ऐसे सवाल मत पूछा करो। फिल्म मेकर देख के बताता है, फिल्म मेकर को पता हो क्या कर रहा है। इतनी मतलब इतना बेहतरीन एडिटिंग और साउंड डिजाइन है, इतनी बेहतरीन तरीके से पिक्चर शूट हुई है। और ये जो टेक्निकल सवाल जनरली जब वैसे पूछता है तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमें बहुत सारा भी समझने की जरूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये फिल्म जो है शूट करना एक अलग चीज़ है, इसको बनाना भी एक अलग चीज़ है। मेरे ख्याल से ये फिल्म शूट हुई है, लिखी गई है, शूट हुई है, और इतने सारे मोमेंट्स को जोड़ना है, एडिटिंग टेबल पे दोबारा तिबारा बनी है, और वो फिर साउंड डिजाइन के साथ उसको और एनहांस किया गया है। तो इसलिए कि जब आप चीज़ देखते हैं तो उसमें मतलब मैं कभी देख ही नहीं सकता हूँ। मैं जब फिल्म देखता हूँ, फिल्म आप जब तीसरी या चौथी बार देखते हो तो तब मैं देखता हूँ ये कैसे एडिट किया है, यहाँ पे साउंड डिजाइन में क्या किया है। पहली बार अगर आप अपने आप को फिल्म में खो नहीं दो ना, तो फिर आप फिल्म देख ही नहीं रहे हो। तो जब ऐसा सवाल एक बार देखने के बाद आता है ना, तो मेरे को बहुत ऐसा परेशान हो जाता हूँ। तो मुझसे पूछो, इस फिल्म का ओवरऑल इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसके बाद थोड़ी देर के लिए शांति थी, फिर किसी एक ने ताली बजाई तो फिर हमने भी बजाना शुरू की। तो वो जो एक इम्पैक्ट है फिल्म का, वो बहुत अच्छा होता है। और ये जो फिल्म देखनी चाहिए, आई थिंक इस फिल्म को अगर कोई रिस्पेक्ट दे तो प्रॉपर अच्छे हेडफोन के साथ आप लैपटॉप पे देखें, तो इस फिल्म को वो इज्जत दीजिए कि इस फिल्म में जितनी मेहनत गई है वो उतनी बाहर निकल के आएगी। मनोज जी, आपकी एक फिल्म और आ रही है, रिलीज हो रही है अलीगढ़, उसको लेकर काफी न्यूज़ है। परफॉर्मेंस देख, कमाल का परफॉर्मेंस है। मेरे को कल एक फोन आया पीयूष मिश्रा का, जो हम सबके बहुत बड़े क्रिटिक हैं, सबके, हम सबके। तो और मैं पीयूष भाई की भाषा में बोलूँगा, उन्होंने कहा यार अनुराग, मुझे तो लगा था कि
इस इंडस्ट्री में सब फ्रॉड है। ये मनोज बाजपेयी फ्रॉड है, आशीष विद्यार्थी फ्रॉड है, ये फ्रॉड है, वो फ्रॉड है। इस इंडस्ट्री में एक्टिंग तो हो ही नहीं सकती। अलीगढ़ देख के आ रहा हूँ यार, मनोज ने क्या कर दिया। ये पीयूष भाई का रात का फोन है, उसने कहा उसने क्या कर दिया, मतलब वो कहाँ पहुँच गया यार, हम लोग पीछे रह गए यार। अभी आई थिंक अब हम लोग को भी अपना नकली चेहरा उतार के फेंकना पड़ेगा। उनसे बढ़िया क्रिटिक कोई है नहीं। तो जब उन्होंने फोन किया तो मतलब वो परफॉर्मेंस देखने लायक है। हाँ, वो क्रिटिक हैं। एक मैंने जैसे इन्होंने क्रिटिक की बात की, तो मैंने 2 लोगों को फिल्म दिखाई। मैं अनुराग को दिखाना चाहता हूँ और ये जानते हैं कि मैं इनके पीछे पड़ा हूँ कई दिनों से। ही नोज दैट आई लव हिम, एडमायर हिम। और बैरी जॉन को दिखाई मैंने, मेरे टीचर हैं। और एनके शर्मा जो जिनके साथ मिलके मैंने एक्ट1 ग्रुप बनाया था शुरू के दिन के लोग, जिन लोगों के 2 लोगों के ओपिनियन को मैं बहुत तवज्जो देता हूँ, और अनुराग को दिखाना चाहता था, दिखा नहीं पाया। मैं इतना जानता हूँ कि बैरी जॉन जब फिल्म देख के बाहर निकले थे, तो मैंने इतने साल उनके साथ गुजारे हैं, या अभी तो मैं उनके साथ काम नहीं करता हूँ, अपनी एक्टिंग स्कूल चलाते हैं। मैंने बैरी जॉन को कभी रोते हुए नहीं देखा था। फिल्म देखने के बाद वो मुझसे कुछ भी नहीं कह पाए, वो गले मिलके सिर्फ रोते रहे, और करीब 15 मिनट तक अलीगढ़ देखने के बाद रोए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी बात नहीं कर सकता हूँ, आज चले गए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक मेल लिखा, और वो मेल बड़ा पर्सनल है तो मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन वो मेल पढ़ करके मुझे लगा कि मेरा पद्मश्री जो है वो मेल के ज़रिए मिल गया है। अब मुझे जो है किसी तरह के किसी अवार्ड की ज़रूरत है। उसी तरीके से एनके शर्मा जो बहुत बड़े, मैं सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिटिक मैं उनको मानता हूँ, ये पीयूष मिश्रा जी को कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पीयूष मिश्रा को बहुत आगे छोड़ देते हैं एनके शर्मा जब सीधा सपाट बोलने की बात आती है। और बहुत he makes a lot of sense and he's already trained so many stars from Bombay कि किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। वो चुपके से ये लोग जाते हैं, उनसे ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आते हैं हर फिल्म के लिए। बहुत सारे स्टार्स जाते हैं इनके के पास। इनके शर्मा ने मुझे कहा, सिर्फ 2 ही बात कही उसने अलीगढ़ के बारे में। उसने कहा, अब जो भी एक्टिंग शुरू करेगा उसके लिए ये मापदंड रहेगा। So I'm very happy that before Aligarh hit the theaters, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे अपने सारे के सारे अवार्ड मिल चुके हैं। अजय जी जैसे हैं, मेरे लिए भी मापदंड है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अजय जी चाहे जितने स्टार दें, मुझे मेरे स्टार्स मिल गए हैं। Anurag, my question is to you. Where he's been applauded for the performance, censor board ने काफी सवाल उठाए फिल्म के ट्रेलर को लेकर. How do you look at it? मैं तो उसके बारे में जो बोलना है कह चुका हूँ, आप लोग उसकी न्यूज़ बना चुके हैं, आप जब दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम सबने ट्रेलर देखा था, ट्रेलर को A सर्टिफिकेट दिया, लेकिन जो ट्रेलर है उसमें कुछ ऐसा था नहीं। उसके बाद देखो, हमारी कंट्री के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है जो भी चीज़ हमें अनकंफर्टेबल करती है वो गलत है, और जैसे हम अनकंफर्टेबल होते हैं हम आंख बंद कर लेते हैं, हम शुतुरमुर्ग बन जाते हैं। सो वो हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारा प्रॉब्लम अभी से नहीं, वो सालों से है। तो हम लोग जब तक उससे डील नहीं करेंगे और जब तक हम खुद एडल्ट नहीं होंगे तो हमारी पिक्चरें जो है वो बचा नहीं रहेंगी। थैंक यू। थैंक यू। मनोज जी, इस तरफ मैं विराज IBM लोकमत से हूँ। जी जी बताइए विराज। पूछना ये था कि जब भी आप मराठी बैकग्राउंड के कैरेक्टर करते हैं, भिक्खू मात्रे का आपने किया था, उसके बाद ये प्रोफेसर श्रेयस थे, वो भी मराठी सिखाते, और अब ये जो तांबे हैं हेड कांस्टेबल, जब भी मराठी कैरेक्टर करते हैं वो अलग ही ऊंचाई पे जाता है। तो अगर इसके ऊपर फिल्म बनेगी तो वापस से मेरे लिए एक्सपेक्टेशन आई डोंट नो, अभी तक क्योंकि काम किया नहीं है उस फिल्म में, लेकिन चूंकि मैं जानता हूँ कि हम लोगों ने इतना रिसर्च वर्क किया है, इतनी बार रीडिंग की है उसकी, कि एक इनिशियल प्रिपरेशन हो चुका है। अब वहाँ पर क्या होगा, सुर सही लगेगा या नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा या सब कुछ सही होगा, वी रियली डोंट नो। बट जो हमारी ईमानदारी है उस प्रोजेक्ट को लेकर के कि हम 2 साल से लगे पड़े हैं
और हर प्रोड्यूसर के पास, जिसके पास भी मैं जाता हूँ, वो नरेशन लेने के साथ ही भाग जाता है। वो मुझसे चुपके से फ़ोन करके बोलता है कि मनोज जी कोई दूसरी चीज़ है तो दे दो, ये वाली नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये पंगे में पड़ जाएंगे हम लोग। तो एक डर है उनके, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि जो आदमी पैसा लगा रहा है वो किसी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहता। बट मैं पूरे तरीके से मैं श्योर हूँ कि ये फिल्म बन के रहेगी और ज़रूर बनेगी, ये भी मेरी जिद है। सर, आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहा इसे? हम लोग रिलीज होते हुए देख रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन ये पूरी जर्नी आपके लिए कितनी थी इसको इस तांडव की जर्नी बहुत आसान थी, क्योंकि मनोज जी ने जब कहानी सुनी, he got movies.com, सर आपको प्रोड्यूस करनी है, and we started the next morning. It was the easiest journey I've ever had. Thank you. I would like to invite the director of photography, Swapnil. He's done such a remarkable job. And विभा जी आइए, हमारी पत्नी का रोल इन्होंने विभा जी ने किया। मैं सिर्फ एक चीज मैं जो कहना चाहूँगा कि अब अभय नंद जो हैं हमारे, एक बहुत ही बड़े हमारे, जिसे कहें कि एक इतना बड़ा सपोर्ट लेकर के अभय, पीयूष और अशोक वगैरह सब पीछे खड़े रहते हैं कि कुछ भी हम लोगों को करने को मेरा मन करता है तो मैं इनको बोलता हूँ, इमीडिएटली लोग खड़े हो जाते हैं। दिस इज द काइंड ऑफ पीपल दैट आई एम कोलैबोरेटिंग विद, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम they accepted me as their brand ambassador, mentor, and movies.com is not merely a venture for me. It's as much a passion for me as acting is. So Anurag, Tishu, Sudhir, इन लोगों को जब भी मैं बोलता हूँ कि movies.com के लिए आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं लोग, not because of me, क्योंकि ये लोग देखते हैं कि movies.com के लोग कितने committed हैं एक अच्छे सिनेमा को लेकर के, अच्छे कंटेंट को लेकर के। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much for coming, but please don't go away without eating, please. देवांश, खिलाऊंगा तभी तो स्टार देगा तू। I'd like to invite the cast and crew of Taandav on the stage, please. Cast and crew of Taandav, photograph, photo session, उसके बाद मेरी फैमिली, फिर मेरे कुत्ते। Can you start the second screen? Anyone who's not seen it till now can go in to see the screening once again. It's just going to begin. Screening of the short film will begin shortly, so anyone who's missed it, please proceed to the auditorium. Hello? हाँ? अभी बगल में सीढ़ी देना, पहला माला पे। हाँ, अरे उसके बगल में बोलो द मूवी, द इसमें जाना, द व्यू में। अरे द व्यू, उसके बगल में सीढ़ी देख, द व्यू करके बोलो उसको, द व्यू बोल।